डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं और जो आप अगर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए, और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 3.1, these are the problems from current electricity. The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? Maximum current बैटरी के थ्रू जो भी होगा वह शॉर्ट सर्किट करंट होगा। थ्योरी में हमने देखा शॉर्ट सर्किट मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, और ऐसा कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि टर्मिनल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फिर भी होता जरूर है। और अगर आपने बहुत अच्छे मोटे टर्मिनल भी यूज किए तो भी वो बहुत तेजी से गर्म होंगे क्योंकि बहुत हाई करंट फ्लो होगा, और वहां पर बर्निंग के कारण फायर भी हो सकता है, फायर भी सेट हो सकता है। यह करंट बड़ी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। V by I, that is 12 by 0.4, that is 30 ampere. This is the answer. V by R, that is 0.4 ohm, that is 30 ampere. This is the short circuit current basically. So this is the answer. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. Battery of 10 volt, internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. Resistor is not given, we will take it R. If the current in circuit is 0.5 ampere, current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? Let us find the current first. Current we can find with the formula, that is V upon capital R plus R. V is the EMF of the battery, that is the only voltage source, that is 10. R we have to find, small r we have 3 ohm and 0.5. So R plus R is basically 10 upon 0.5, that is 20. So R is 17 ohm, very easy. Then what is the resistance of resistor? We have find what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed. Terminal voltage, that means the voltage from here to here, and it is the V when battery is discharging. It is E minus I R. E is 10, I is 0.5 and R is 3. So 10 minus 0.5 into 3, that is 10 minus 1.5, that is 8.5 volt. This is the answer. So it is a very easy question, formula based question. (3.3a) Three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. Total resistance of the combination. What is the total resistance of the combination? अगर रेजिस्टेंसेस आपने सीरीज में यूज किए हैं तो क्या होगा? 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Total resistance in the series is given by the formula R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is the combination for 3 resistances in the series. So R is basically 1 plus 2 plus 3, that is 6 ohm. What is the total resistance of the combination? If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, battery is connected there with EMF of 12 volt with internal resistance negligible. Obtain the potential drop across each resistor. आपको अगर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए V इज इक्वल टू, तो सबसे पहले करंट फाइंड करना चाहिए सीरीज में। हम देखते हैं करंट क्या होगा। करंट होगा
V by total resistance, that is V is 12, total resistance is 6 ohm, the current is 2 ampere. And what is the potential drop here? If it is R1, suppose the V1 will be I R1, I is 2 ampere, R1 is 1, it is 2 volt. Similarly, we will get I2 into R, that is 2 again, 4 ohm, and V3 is now 6 volt, not the volt, ohm, and volt, 2, 4, 6 volts respectively. The voltage drop across 3, potential drop across 3 resistances in the series. So it is an easy question. Find the current and use this formula. Ohm's law is very important at every and each step of a circuit solving. 3.4a, 3 resistance 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in parallel. What is the total resistance of the combination? अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला हो जाता है 1/r is 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. The combining resistances are 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm. 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm. So using this formula we can find the combination resistance, that is 1/2 plus 1/4 plus 1/5. Multiplying with 10 here, so it is 10 by 20. Multiplying 5 here, it is 5/20. Multiplying 4 here, 4 by 20. 5 plus 4, that is 19/20. So R is basically 20 by 19 ohm. 20 by 19 ohm. If the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, combination is connected across battery of 20 volt with no resistance. Determine the current through each resistor and total current drawn from the battery. Current will be different in parallel combination if the resistances are different obviously. तो करंट जो होगा I1 जो होगा, V तो सबके लिए कॉमन है, मैं उसे VC लिखूंगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा. V कॉमन है क्योंकि सबके लिए पोटेंशियल ड्रॉप 20 होगा, सबके अक्रॉस बैटरी ने 20 वोल्ट मेंटेन किया हुआ है. तो I1 होगा VC अपॉन R1, दैट इज 2, दैट इज 10 एम्पियर. सिमिलरली I2 होगा 20 अपॉन 4, that is 5 ampere. I3 will be 20 upon 5, that is 4 ampere. Total current is I1 plus I2 plus I3, and I will be the current from here. I1 current will be here, I2 current will be here, I3 current will be here. So I is 10 plus 5 plus 4, very easy to see, that is it is 19 ampere. So it is simple. Exercise 3.5. At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. R27 is 100 ohm. What is the element if the resistance is found to be 117 ohm? RT, T temperature for resistance is found to be 117 ohm. Given that temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade, that is alpha is given as 1.70 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. यहां पर जो फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए वह है R at temperature T is R naught 1 plus alpha T. अगर हम यह फॉर्मूला यूज करते हैं तो आंसर डिफरेंट होगा. और R नॉट बेसिकली क्या है? R नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपका रेजिस्टेंस है, या आप R नॉट को R27 ले रहे हैं इटसेल्फ. अगर R27 को आप बेसिक
बेस रेजिस्टेंस लेते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, आर टी जो होगा वह R27 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर माइनस 27 टेम्परेचर T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर आप यह फॉर्मूला यूज करते हैं और यह फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को बेस रेजिस्टेंस लिया जाता है। और ऐसा अगर करते हैं तो हमें R27 की जो वैल्यू है 100 ओम है, उस वैल्यू की हेल्प से R0 फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें R0 1 प्लस अल्फा अल्फा 1.7 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू टेम्परेचर 27 यूज करना होगा। तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे, R0 की जो वैल्यू आएगी वो 99.54 होगी। एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा लेते हैं हम इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में। और अब हमें आर टी चाहिए जो कि 117 ओम है। जो R0 अगेन आर टी वी हैव टू फाइंड, R0 हमारे पास है 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर इज टी। तो यहां से यदि टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1031 डिग्री सेल्सियस। और अगर यह अप्रोक्सीमेशन है, बेसिकली अगर यह फॉर्मूला यूज करते हैं जैसा कि एनसीईआरटी ने यूज किया है, तो आप देखिए आर टी है 117, R27 है 100, 1 प्लस अल्फा इज 1.70 10 टू द पावर माइनस 4 T माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज दिस? 117 by 100, that is 1.7 is equal to 1 plus 1 to the power minus 4 T minus 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 1 यहां से तो ये हो जाएगा 1.17 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 0.17 और ये हो जाएगा 1.70 10 टू द पावर माइनस 4 T माइनस 27। डिवाइड कर देंगे अगर हम इसे तो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू T माइनस 27। 0.17 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा 1000 is equal to T minus 27, that is T is equal to now 1027 डिग्री सेल्सियस। यह आंसर एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन इस आंसर को मैं गलत मानता हूं। यह आंसर परफेक्ट है, दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि R0 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस लिया जाता है ज्यादातर, और अगर कुछ नहीं गिवन है तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस लूंगा। R0 की वैल्यू फाइंड करके मैं करूंगा सॉल्व। आगे भी एक प्रॉब्लम में हम इस तरह की गड़बड़ देखेंगे। 3.6 A negligible small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6.0 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? स्मॉल करंट का मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर राइज नहीं किया आपने, बहुत ही कम करंट फ्लो किया है। रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी से रिलेशन है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R is given 5.0, rho we have to find, L is 15 and area is 6.0 into 10 to the power minus 7। तो फाइनली क्या होगा? 6 into 5 30, 15 into 10 to the power minus 7 is equal to rho, that is 2 into 10 to the power minus 7, 2.0 लिया जाना चाहिए, 2.0 into 10 to the power minus 7 ohm meter is the resistivity. So this is the answer itself. The answer is 2.0 into 10 power minus 7 ohm into meter. It's a very simple question. 3.7 A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius. इसका मतलब रेजिस्टेंस एट 27.5 डिग्री सेल्सियस इज 2.1 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2.7 ओम। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर।
हमें अल्फा फाइंड करना है। अगर आप एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करते हैं 2.7, दैट इज बेसिकली T2 इज T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यह फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली यूज किया जा सकता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस के लिए। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एनसीईआरटी में इसी फॉर्मूले को यूज किया है और यह यूज किया है 2.7 टेम्परेचर T2 पर 2.7 रेजिस्टेंस है और T1 पर रेजिस्टेंस है 2.1। 1 plus alpha we have to find, and T2 minus T1 is basically 72.5 because T2 is 100 and T1 is 27.5 degrees Celsius. So answer, you can find the answer with this formula. Is 1 plus alpha temperature. अगर आप यह फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप देखिए RT दैट इज R27 आप देखेंगे 2.1, that is R0, we don't know what is R0, 1 plus alpha 27.5, and RT again for the R 100 degree centigrade per, so that is 2.7 R0 1 plus alpha, what is the temperature is 100, so 100 अगर आपने टेम्परेचर लिया तो R 100 लेंगे, R 100 है आपके सामने 2.7 ओम। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस और क्रॉस मल्टीप्लाइंग, डिविडेशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 प्लस 2.1 अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू 2.7 प्लस 2.7 into alpha into 27.5. Solving this, alpha will be 2.7 minus 0.6 divided by 2.1 into 100, that is 210 minus 2.7 into 27.5. 2.7 minus 2.1, that is 0.6. लेफ्ट में लेके आए, अल्फा कॉमन लिया तो 100 into 2.1, that is 210, एंड दिस इसी से डिवाइड भी कर दिया तो आपके लिए अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी 0.0044। कैलकुलेशन मैंने जरूर जल्दी में किया है, लेकिन जो तरीका है मैंने आपको बताया, डिफरेंस जो है वो मैंने आपको समझाया है। आप खुद करके देखिए एक बार दोनों आंसर में क्या डिफरेंस है और क्यों है। तो यह आंसर सही है क्योंकि R0 आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसी को यूज करना चाहिए, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो है यूज नहीं करना चाहिए। तो रेफरेंस क्या है, एनसीईआरटी में भी क्लियरली कहीं नहीं लिखा है। तो आइए आगे देखते हैं हम। 3 सिमिलर एग्जाम्पल है, सिमिलर प्रॉब्लम पर एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी बुक में। तो आप देखिए यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट यूजिंग ए नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। वोल्टेज 230 है, इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर है, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। थोड़ी देर बाद करंट आप देख रहे हैं कम हो गया। करंट कम क्यों हो गया? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इनिशियल करंट जो था उससे सेटलिंग करंट थोड़ा कम होगा। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो इनिशियल करंट था वह ड्यू टू इनिशियल रेजिस्टेंस R27 के कारण था, और R27 था V बाय करंट। इनिशियल करंट इज 3.2, तो इनिशियल रेजिस्टेंस था 71.9 ओम। सेटलिंग रेजिस्टेंस, सपोज RT is the settling resistance, that is 230 divided by 2.8, that is 82.1 ओम। तो यदि हम फॉर्मूला R2 is equal to R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 यूज करते हैं यहां पर, तो 82.1 R1 71.9 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ गिवन इंटू T-27 करना होगा हमें।
Temperature coefficient and resistance of Nicron averaged over temperature range involved is 1.7 10 to the power -4 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, यह गिवन है। तो अगर इसे यूज करते हैं तो T की वैल्यू क्या मिलेगी? तो यहां से टेम्परेचर की 862 डिग्री सेल्सियस, यहां से जो टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी, सेटलिंग टेम्परेचर मिलेगा, वह 862 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर आप दूसरी तरह से कैलकुलेशन करें या थोड़ा बहुत चेंज करें, R0 फाइंड करके करें, तो वो 870 के आसपास होगा। तो कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है सब कुछ, आप क्या रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट अगर फिक्स नहीं है तो R0 लेना चाहिए, जो कि ज्यादा सही होगा। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा आपको। 3.9 डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। आप जो फिगर देख रहे हैं उसमें 3 विंडोज है, एक यह है, एक यहां पर है, और यह एक बड़ी विंडो है। और अगर 3 विंडोज हैं तो आप 3 इक्वेशन, जैसा कि किरचॉफ लॉ में मैंने आपको समझाया था, और यहां पर हमें किरचॉफ लॉ यूज करना ही होगा, क्योंकि यह अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। 10-5 5-10 10-5 10-5 होता तो यह बैलेंस होता, लेकिन 10-5 के अलावा यह 5-10 है, तो यह अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब इस सर्किट में करंट होगा, बीच वाली ब्रांच में करंट होगा, और बीच वाली ब्रांच में करंट होगा तो फिर हमें किरचॉफ लॉ यूज करना होगा। और मैंने कहा है थ्योरी में, अगर 3 विंडोज है तो आपको 3 इक्वेशन लिखना होगी। इस तरह के सर्किट एग्जाम में अगर आपको आते हैं तो वहां सॉल्व नहीं किए जा सकते। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि एरर होने की पूरी चांस होती है। कैलकुलेशन एरर, प्लस माइनस के एरर होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। 2 विंडो के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन यह एक पर्टिकुलर ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ज्यादा लंबे करने के बजाय एक शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता है, चाहे यह 3 विंडो का ही क्यों ना हो। तो 3 विंडोज होने के बावजूद इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जिसे ट्रिकी सॉल्यूशन कहा जा सकता है। और इस तरह की प्रॉब्लम अगर पूछी जाती है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि यह सिमेट्रिक सर्किट है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन देखी है, वो कुछ इस तरह से होगी, यहां इधर होगा, यहां इधर होगा। तो मैं इन करंट्स को एज्यूम करता हूं कि यह I1 करंट है, इसी डायरेक्शन में यह करंट I2 है, और यहां मैं यह करंट एज्यूम करता हूं I3। मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं, D to B ले रहा हूं, जबकि फिगर में B to D करंट पूछा गया है। मैं इसलिए ऊपर ले रहा हूं कि मुझे पता है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस कम है, करंट इस ब्रांच में कम होगा, इस ब्रांच में ज्यादा होगा। और अब यहां से जो ज्यादा करंट है यहां से डिवाइड हो जाएगा, तो इस ब्रांच में ऊपर की तरफ करंट होगा, डी से बी की तरफ करंट होगा, क्योंकि करंट यहां से जब डिवाइड होगा तो लोअर रेजिस्टेंस की ब्रांच में ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं यहां 15 है, यहां भी 15 है, लेकिन यह इनिशियली कम था, इसलिए करंट यहां तक पहुंचने के बाद फिर से डिवाइड होगा, क्योंकि आगे का रास्ता उसके लिए 10 ओम का है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां करंट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं यहां करंट I1 होगा। क्यों I1 होगा? अगर आप इस पोलैरिटी को चेंज कर दें तो क्या होगा? इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो पूरे सर्किट में करंट जहां जहां जो भी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बस पोलैरिटी चेंज किया तो पूरे सर्किट में जहां जहां जो भी करंट है उनकी डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और किसी भी ब्रांच में कहीं भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो किसी भी सर्किट में अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, सिंगल बैटरी है अगर वहां पर, या सभी बैटरीज हैं, तो सभी बैटरी को पोलैरिटी अगर आपने रिवर्स कर दिया तो सारे करंट्स रिवर्स हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। तो सोचिए अगर आपने पोलैरिटी चेंज किया तो जो करंट आपने I1 यहां एज्यूम किया, यहां भी I1 होगा, डायरेक्शन यह होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड I1 के इक्वल होगा। I1 के इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों होगा? क्योंकि ब्रांचिंग आप देखिए 10-5 में हो रहा है, यहां भी 10-5 में ब्रांचिंग हो रहा है।
तो पोलैरिटी रिवर्स करने से जो करंट यहां से यहां आएगा उसका मैग्नीट्यूड I1 के इक्वल ही होना चाहिए। इसका मतलब पोलैरिटी अगर रिवर्स नहीं करते हैं तो यहां जो सेम डायरेक्शन में करंट होगा वो I1 के इक्वल होगा, क्योंकि यह सिमेट्रिक सर्किट है। इसी तरह से यह करंट I2 होगा। वैल्यू आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। I3 की जो वैल्यू होगी वो I2 माइनस I1 होगी। I2 में से I1 इधर चले गया तो रिमेनिंग I3 ऊपर चले गया। अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। हम इस सर्किट में इक्वेशन लिखते हैं तो यहां जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 करंट होगा। हमेशा हम इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो ड्रॉप होता है उसे लिखते हैं पॉजिटिव और जो इंक्रीमेंट होता है उसे लिखते हैं नेगेटिव। अपना अपना तरीका है लिखने का। तो मेरा तरीका यह है कि मैं I1 प्लस I2 करंट अगर 10 ओम से पास हो रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, 10 ohm into I1 plus I2, this is a drop of voltage across this, drop of potential across this resistance, and then again 5I2 is another drop, plus 10I1 is another drop, is equal to increment of the voltage। जब नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं, जब लूप करंट आप करंट एक पूरा लूप कंप्लीट करते हैं तो करंट के साथ में चलते हुए आपने कंप्लीट किया है लूप, तो करंट की डायरेक्शन में आप आ रहे हैं अगर यहां से इधर तो माइनस से प्लस पे आते हैं तो ये इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज होगा। जितना भी ड्रॉप लिखा है आपने उसे इंक्रीमेंट के इक्वल कर दीजिए। ये इंक्रीमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यह पॉजिटिव है क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो बैटरी वोल्टेजेस को आप इधर लिखेंगे, सारे ड्रॉप इधर लिखेंगे। तो अपना अपना तरीका है, आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा जा रहा है। यहां पर यह सारे ड्रॉप लिख दिया और यह इंक्रीमेंट लिख दिया। इंक्रीमेंट को नेगेटिव लिखते हैं अगर हम तो टोटली जीरो लिखते हैं, और नेगेटिव से अगर आप ना लिखते हैं तो राइट साइड में ले लीजिए, उसे प्लस लिख देंगे हम। अगर बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स होती तो यहां -10 हो जाता, क्योंकि दिस इज ऑल्सो -10। अब हम किसी एक सर्किट में करंट देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं, दिस इज 10 सर्किट में हम घूमते हैं इस तरह से। दिस इज 10I1, द ड्रॉप अपोजिट टू करंट जाएंगे तो 5I3 करंट होगा। 5I3 को आप लिखेंगे I2 माइनस I1, माइनस लिखना होगा आपको यहां पर क्योंकि आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, और फिर लिखेंगे -5I2 क्योंकि आप इस करंट के अपोजिट आते हैं। तो इस लूप को आप फिर से देखिए, 10I1 ड्रॉप है, फिर हमने जो अज्यूम किया करंट वह इस डायरेक्शन में है, इसलिए I3 5I3 जो है वो इंक्रीमेंट होगा क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट को हम माइनस लिखेंगे और फिर यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां वापस आके लूप कंप्लीट करेंगे तो अपोजिट जाएंगे I2 के, इसलिए -5I2 होगा क्योंकि यह इंक्रीमेंट होगा। तो थ्योरी में हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 5 से डिवाइड करते हैं, पहली इक्वेशन क्या होगा, 10I1 20I1 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4I1, 5I2 10I2 5 से डिवाइड करेंगे तो 3I2 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। सिंप्लीफाई करें इसे तो 5 से डिवाइड करेंगे 10I1 प्लस 5I1 दैट इज 3I1, माइनस माइनस बिकम प्लस 3I1 इज इक्वल टू -5I2 दैट इज इक्वल टू प्लस 10I2 और उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 2I2 होगा। माइनस को हमने लेफ्ट से राइट में लाकर प्लस कर दिया है। तो यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यदि I2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I1 की वैल्यू आप देखिए क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी 2/3I2, I1 की वैल्यू 2/3I2, तो यहां I1 के लिए 2/3 दैट इज 4 into 2/3 I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा 8/3, 3 into 3 9, 8 प्लस 9 17I2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं I2 की वैल्यू हमें मिलेगी 3 into 2 6/17 एम्पियर। वैल्यू जो अगर पॉजिटिव है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा जो करंट है एज्यूम डायरेक्शन में ही है।
I2 की वैल्यू आपको मिल गई है 6/17 एम्पियर। डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन है हमारे फिगर में। I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 होगा 2/3 I2, दैट इज 2/3 I2। I2 इज 6/17 एम्पियर। I2 इज 6/17 एम्पियर, दैट इज 3 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 4/17 एम्पियर। यह भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन वही होगी जो हमने अज्यूम किया था। और I3 की वैल्यू क्या होगी? I3 की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। I2 दैट इज 6/17 माइनस 4/17 दैट इज 2/17 एम्पियर। I2 माइनस I1 दैट इज 6/17 माइनस 4/17 दैट इज 2/17 एम्पियर। और डायरेक्शन हमने जो अज्यूम किया था वह है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखें तो करंट इन AB इज I1, करंट इन AD इज I2, दैट बोथ आर पॉजिटिव। करंट इन BD इज माइनस ऑफ I3 दैट इज माइनस 2/17 एम्पियर। तो देखा हमने कि दो सिंपल सी इक्वेशन से हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया फटाफट, लेकिन स्टिल दिस इज वेरी लॉन्ग पर द आपका कंपटीशन एग्जाम। लेकिन स्कूल एग्जाम में अगर इस तरह से करें तो हमारा काफी टाइम बचेगा और मार्क्स भी काफी अच्छे लगेंगे। इंप्रेसिव तरीका है। आइए आगे देखते हैं हम। 3.10a, in a meter bridge see in the figure, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from the end A. This is the 39.5 centimeter. L1 is 39.5 centimeter given in the question. When resistor Y is of 12.5 ohm, resistor Y is 12.5 ohm. Determine the resistance X. Determine the resistance of X. Why are the connections between resistors in a Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strips? थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए यूज करते हैं कि इनका कनेक्शन रेजिस्टेंस, जिसे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वह कम से कम हो और इनका रेजिस्टेंस इनकी वैल्यूज को इफेक्ट ना करे। रेजिस्टेंस कम करने के लिए, हम एरर कम करने के लिए इन्हें थिक रखते हैं और अकाउंट में केवल एक्स और वाई का रेजिस्टेंस आएगा, फिर इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। और यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है? x अपॉन L1 विल बी इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस L1। इस फॉर्मूले से x की वैल्यू क्या होगी? L1 अपॉन 100 माइनस L1। L1 इज 39.5, 100 माइनस L1 इज 60.5 और y is 12.5 multiplied by y. So x with the help of this data, and this will 8.16, जिसे हम 8.2 लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक समथिंग राउंडिंग करने पर यह हो जाएगा 8.2 ओम। So this is the answer for part A. Determine the balance point of the bridge above if x and y are interchange. अगर आपने x और y को इंटरचेंज किया तो बैलेंस पॉइंट कुछ ऐसा होगा जो इधर से 39.5 होगा। अभी इधर से 39.5 है, x अगर आपने इधर कर दिया तो x प्रोपोर्शनल हो जाएगा इधर से 39.5 के। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? फॉर b वी हैव टू फाइंड द आंसर, इट इज 100 माइनस L1 देन 60.5। सो आंसर फॉर पार्ट बी इज 60.5, क्योंकि जो x 39.5 को बैलेंस कर रहा है, अब y और x एक्सचेंज होने पर x इधर से 39.5 के प्रोपोर्शनल होगा और y 60.5 के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल क्लियर है। x अपॉन L1 इज y अपॉन 100 माइनस L1। What happens if galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? No. Wheatstone ब्रिज की थ्योरी में हमने देखा था, दिस इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज, और थ्योरी में हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करने पर, गैल्वेनोमीटर यहां पर है, सेल यहां पर है, इंटरचेंज करने पर इसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता है, और अगर बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा तो देयर विल बी नो करंट। कहेंगे हम इट विल रिमेन
balanced bridge obviously. So this is the answers. 3.11, a storage battery of EMF 8.0 volt and internal resistance of 0. is being charged by 120 volt DC supply. Supply is there of 120 volt DC. Supply using a series resistor of 15.5 ohm. There is a series resistor. यह आपका DC सप्लाई है सपोज, और यह आपका सीरीज रजिस्टर है 15.5 ओम. What is the terminal voltage of the battery during charging? This is your battery, और बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट हमेशा हम सोर्स की पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग. तो करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, पॉजिटिव से एंटर करेगा. 8 वोल्ट बैटरी, 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस. What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? अगर आप यह सीरीज रजिस्टर नहीं यूज करते हैं तो करंट की वैल्यू को लिमिट नहीं किया जा सकता, और करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी. हो सकता है कि वो बैटरी को डैमेज कर दे, और बैटरी में ज्यादा हीटिंग होगा, हीटिंग इफेक्ट के कारण ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और बैटरी ब्लास्ट हो सकती है. तो हाई वोल्टेज या हाई करंट चार्जिंग जिसे कह सकते हैं हम, से बैटरी ब्लास्ट होने का डर रहता है, खासकर जो बैटरी पैक्ड बैटरी होती है. तो यह तो केमिस्ट्री है पूरा बैटरी का. और व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग? तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है हमें. टर्मिनल वोल्टेज जो होगा V होगा E प्लस आई आर. करंट फाइंड करते हैं सबसे पहले. करंट कितना होगा इस पूरे सर्किट में? करंट फाइंड करने के लिए EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. EMF टोटल कितने हैं? 120 माइनस 8, क्योंकि आप देख सकते हैं 120 के अपोजिट में है 8 वोल्ट. तो 120 माइनस 8 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15.5 प्लस 0.5 ओम. दिस इज 16 ओम. 112 डिवाइड बाय 16, यह कितना होगा? इट इज 7 एम्पियर. It is 7 ampere. Or V is equal to E, that is 8 volt, I that is 7 ampere, plus R that is 0.5 ohm, that is the internal resistance of the battery. This is 3.5 plus 8, that is 11.5 volt. This is the answer. तो easy problem है basically. 3.12, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives the balance point at 35.0 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63.0 centimeter, what is the EMF of the second cell? EMF comparison का फॉर्मूला आप देख सकते हैं. E1 upon E2 will be L1 upon L2. In case E1 is 1.25 volt, E2 is to be found. Balancing point with 1.25 EMF battery is 35 centimeter, divided by balancing point for second cell, that is 63.0 centimeter. यदि हम E2 की वैल्यू फाइंड करें तो E2 बड़ी आसानी से मिलेगा आपको. इट इज 63.0 डिवाइड बाय 35 into 1.25, it is 2.25 volt. Another easy question, simply on the formula. 3.13, the number density of free electrons in a copper conductor estimated in example is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. That is the n number of charge carriers, that is the electrons. It is 8.5 10 to the power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3.0 meter long to its other end? एक वायर में इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है कैसे मूव करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनके हम मेजर कर चुके हैं. The area of cross section of wire is 2.0 10 to the power
minus 6 meter square, and it is carrying a current of 3 ampere. How long does an electron take? कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ड्रिफ्ट होने में? This is 3 meter long. First we have to find drift velocity. Divide by E and also divide by A. And 8.5 10 to the power 28. Divide by E. E is 1.6 10 to the power minus 19. And area of cross section, that is 2.0 into 10 to the power minus 6. तो देखिए क्या होगा यहां पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें वेट ड्रिफ्ट कितना मिलता है. जीरोस देखते हैं. 10 to the power 28 minus 10 to the power into 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 6. तो यह minus 25 जीरोस हो गए. पावर minus 25 होगा इनफैक्ट. और 28 और minus 25 तो यह हो जाएगा 10 to the power 3. में हो जाएगा 10 to the power 3. 3.0 upon 8.5 into 1.6 into 2. These all will lead to 0.11. This is the V drift. Now time is 3.0 divided by 0.11. Even this is 10 to the power minus 3. So it is 10 to the power minus 3. It comes out to be 2.7 into 10 to the power 4 second. That is nearly 7.5 hour. So this is answer. आइए आगे देखते हैं हम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलने के बाद तो आपका काम बिल्कुल आसान है. 3.14 The Earth's surface has a negative surface charge density of 10 to the power minus 9 coulomb per meter square. The potential difference of 400 kilovolt between the top and of the atmosphere and surface results due to the low conductivity of lower atmosphere in a current of only 1800 ampere over the entire globe. पूरी अर्थ पर हम एटमॉस्फेयर और अर्थ की देखते हैं 1800. दो करंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. एक तो कंडक्टिविटी के कारण और एक थंडरस्टॉर्म के कारण उसके अपोजिट. If there were no mechanism of sustained atmospheric electric field, how much time roughly would be required to neutralize the Earth's surface? अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है तो कितने टाइम में सारा करंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा? This never happen in practice because there is a mechanism to replace electric charge, namely the continual thunderstorm and lightning in different parts of the globe. जो चार्ज कभी खत्म ही नहीं होगा उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब हमें खुद ही क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इट नेवर हैपन्स. अगर हैपन होता है तो हम उसका टाइम क्या फाइंड करेंगे? टाइम क्या होगा? टाइम होगा चार्ज अपॉन एम्पियर. व्हाट इज द चार्ज ऑन द सरफेस? Charge on the surface is 4 pi r square into surface charge density divided by current. Current is 1800 ampere. 4 pi r is the radius of Earth, that is 6.37 into 10 to the power 6. Also 6.37 into 10 to the power 6 also. Into sigma. Sigma is 10 to the power minus 9. That is the surface charge density given in the question, coulomb per meter square, divided by 1800. That is the current. Solving this, we can get the value of the data, that is 283 seconds. So this is the answer. I will not say anything about this all. Everything is clear in the question. 3115. 6 lead acid types of secondary cells, each of EMF 2.0 volt and internal resistance of 0.015 ohm, are joined in series to provide a supply of 8.5 ohm. 6 cells are there. In series to join a resistance of 8.5 ohm.
What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? This is a supply now. Total internal resistance is 6 times the internal resistance of 1, that is 6 into 0.015 ohm, that is 0.09 ohm. Now what is the current? Current is the total EMF divided by total resistance. Sum of the EMFs divided by the total resistance of the circuit. सिंगल लूप में हम यही देखते हैं. और EMF is 2 into 6, that is 12. 12 and total resistance is 8.5 plus 0.09, that is 8.59. This will be equal to 1.4 एम्पियर. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.4 एम्पियर. और what is the terminal voltage? Terminal voltage is E minus IR. What is E? E is the EMF of the battery, that is 12, minus I, that is 1.4, and what is the resistance of the all the combination of the batteries, that is 0.09 ohm. So this will be 12 minus 1.4, 1.4 into 0.09, 11.87, that is 11.9 volt. So this is the answer. A secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? The maximum current that we can draw from it can be calculated as the short circuit current, that is I is equal to V by R. V is the EMF, that is 1.9 volt, and R is 380 ohm. If you simplify this, it will be 0.05 एम्पियर, 005 एम्पियर. 1.9 से आप डिवाइड करेंगे तो यह 1/200 हो जाएगा, और 1/200 जो होगा 0.005 एम्पियर होगा. करंट से कभी भी कार की बैटरी स्टार्ट नहीं हो सकती. कार की बैटरी स्टार्ट करने के लिए आपको 40, 50 या 100 या 150 एम्पियर, 150 एम्पियर तक लगता है. लेकिन फ्यू सेकंड्स, 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं चाहिए करंट भी. इतने ही करंट में हमारी कार स्टार्ट हो जाती है. इतने टाइम में हमारी कार स्टार्ट हो जाती है. हार्डली 1 सेकंड में कार स्टार्ट हो जाता है. तो यह तो इम्पॉसिबल है कि इस बैटरी से हम कार स्टार्ट कर सकें, क्योंकि जो बैटरी डाउन हो जाती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर चार्ज कैरियर्स जो होता है वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. तो यह तो आपको अच्छे समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा. आइए आगे देखते हैं हम. 3.16 two wires of equal length, one of aluminium and the other of copper, have the same resistance. Resistance are same. Two wires is lighter. सेम रेजिस्टेंस में अगर आप यूज करते हैं इक्वल लेंथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज वायर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर रेजिस्टेंस आर सेम. विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर? दोनों में हल्का कौन सा है? हैंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड कॉपर केबल्स, पावर केबल्स. Rho that of aluminum is 2.63 into 10 to the power minus 8 rho into meter, ohm into meter. Rho, that is the resistivities are given for aluminum and copper both, and relative density of copper and aluminum is also given. Which is lighter? हम एक काम करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं. मास ऑफ aluminium divided by mass of copper. Mass is basically density into volume, and density that I will take here as sigma. Density of the aluminium upon density of the copper into volume. Volume is basically area and length.
area of the copper aluminum wire divided by area of the copper wire into length. Length is same, so I'm taking both L. Resistance same. Resistance is R, that is rho L upon A. Rho is the resistivity. तो R के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रो एल्यूमिनियम. R एल्यूमिनियम जो है वह रो एल्यूमिनियम into L length divided by area of the aluminum wire. Also it will be equal to copper wire resistance, so it is rho of copper wire length L is same and area for the copper wire. You see this, L will cancel out. Mass of aluminum divided by mass of copper wire. Sigma aluminum by sigma copper, this is density. I can take relative density, so it is 2.7 upon 8.9 into area of the aluminum wire divided by area of the copper wire. Area of the aluminum divided by area of the copper, that is rho aluminum divided by rho copper. It can be seen very easily. L कैंसिल कर दीजिए, L यहाँ आ जाएगा, रो कॉपर से डिवाइड कर दीजिए. तो रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर क्या है, एरिया एल्यूमिनियम अपॉन एरिया कॉपर. तो यहाँ रिप्लेस करेंगे इन वैल्यूज को, रो एल्यूमिनियम बाय रो कॉपर. रो एल्यूमिनियम 2.63 डिवाइड बाय रो कॉपर 1.72 पावर 10 टू द पावर -8, दोनों में सेम है, लिखने की जरूरत तो नहीं थी, कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पे 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में, क्योंकि टोटल डेंसिटी जो होती है रिलेटिव डेंसिटी इंटू 10 टू पावर 3 होती है kg पर मीटर क्यूब, लेकिन उससे हमें जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दिया हमने उसे. ऑन सॉल्विंग, मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ कॉपर वायर for the same length, for the same resistance is basically 2.7 into 2.63 upon 1.72 into 8.9. This is basically 1 upon 2.2. You can see mass of aluminum is lighter, less than mass of copper by a factor of 2.2. So mass of aluminum is mass of copper wire divided by 2.2. Aluminum is lighter, and so aluminum is used for overhead power cables. That is a very easy understanding after this consequence. तो अच्छा रहता है, आपने हमेशा वायर देखोगे. एल्यूमिनियम वैसे भी अच्छा है क्योंकि सस्ता भी. Exercise 3.17. What conclusion can you draw from the following observation on a resistor made of alloy manganene? मैग्नीन अलॉय बड़ा फेमस है और हमें पता चलेगा कि वो क्यों फेमस है. करंट वोल्टेज रिलेशन देखिए, आप ध्यान से देखिए. 0.2 एम्पियर करंट है तो वोल्टेज है 3.94. 10 टाइम्स अगर आप करंट लेते हैं तो वोल्टेज 10 टाइम्स हो जाएगा 39.4. 1 एम्पियर आप देखते हैं तो वो होगा 19.7. 5 एम्पियर उससे 5 टाइम्स देखते हैं तो 98.6. और यह बिल्कुल इससे 5 टाइम्स है. 19.7 का 5 टाइम्स जो होगा 98.5 के पास होगा. 98.5 होगा, जबकि 98.6 है. इट इज नियरली द सेम. तो यहां पर एक बात बड़ी अच्छे समझ में आ गई. ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर. Why I am writing temperature? Because as soon as the current is increased, heating effect increases the temperature of the resistor. Ohm's law is valid for high temperature, all temperature and all currents. यहां पर V is equal to IR का रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है. R is constant for all the currents. करंट्स को मैं यहाँ टेम्परेचर के सिनोनिम में इसलिए ले रहा हूं कि करंट इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसमें कोई शक नहीं है. सो आर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंड दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ resistivity is 0. So this is the answer.
तो आइए आगे देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Metallic conductor of non-uniform cross section like this. Current is same. Which of these quantities is constant along the conductor? Current, current density, electric field, and drift speed. Current is constant, I know very well, because current is the charge flow per unit time. जितना चार्ज यहां से फ्लो होगा उतना चार्ज आगे फ्लो होगा और करंट थ्रू आउट कांस्टेंट होगा. While current density J is depending upon area. Current density is not, क्योंकि एरिया आप देख रहे हैं वेरिएबल है, सो इट इज नॉट कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज रेजिस्टिविटी अपॉन current density. Current density is variable, resistivity is constant, so E is not constant because J is not constant throughout the wire. Area is changing, so J is changing. Electric field is also variable. Drift speed VD is I upon N E A. I, A, E and N are constant, but area is not constant throughout the wire, so VD is not constant. Is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? No, obviously not. सभी के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकता. गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ जो ओबे नहीं करते हैं वो डायोड है, और पीएन जंक्शन ओम्स लॉ ओबे नहीं करता. आपका पीएन जंक्शन डायोड, पुराने किस्म के जो डायोड होते हैं वो, और भी कुछ डिवाइसेस होती है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती. A low voltage supply from which one needs high currents must have very low internal resistance by. A low voltage supply from which one needs high currents. अगर आपको हाई करंट चाहिए, जैसा कि कार बैटरी में आपको हाई करंट चाहिए थोड़ी देर के लिए, must have very low internal resistance. मैक्स करंट जो होता है, मैक्स करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाय इंटरनल. तो यह मैक्स करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस लो चाहिए. दिस इज द फैक्ट, बिकॉज यू नीड हाई करंट. So this is the reason max current is EMF by internal resistance. So you have to put low internal resistance. A high tension supply of say 6 kilovolt must have a very large internal resistance by. High tension supply को यदि आपने शॉर्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, और ऐसे केस में डैमेजिंग बहुत ज्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज्यादा होगा. इसलिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखते हैं. तो उसका जवाब होगा टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट करंट. So this is the answer. Choose the correct alternatives. Alloys of metals usually have greater or less resistivity than of their constituent metals. Alloys की जो resistivity है वो usually greater होती है, कुछ केसेस में लेस भी होती है, और कुछ सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो बेसिकली अलॉयज होते हैं, लेकिन यूजुअली वह ग्रेटर होती है, क्योंकि उनके अंदर उनका जो मेटल्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है. अलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर और हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स. अलॉयज का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह लोअर होता है as compared to their pure metal constituents. Resistivity of alloy manganese of increases rapidly with increase of temperature. It is independent of temperature. मैग्नीन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो हम इंडिपेंडेंट वाला पार्ट लेंगे.
The resistivity of typical insulator, that is amber, is greater than that of a metal by a factor of. मेटल से अंबर की रेजिस्टिविटी 10 to the power 22 टाइम्स ज्यादा होती है. 10 to the power 3 का मतलब तो केवल 1000 टाइम्स हो गया, लेकिन 1000 नहीं, मिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम्स ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की. तो आइए देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बातें मैंने सीखी. 3.20a, given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get the minimum effective resistance? मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको इन सीरीज कनेक्ट करना होगा सबको. मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको सबको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस? मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगा वो n टाइम्स द R होगा, क्योंकि R रेजिस्टेंस अगर आपने सीरीज में लगा दिए हैं, n रेजिस्टेंस R ईच आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो R मैक्स होगा n बाय R. और मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा वह होगा आपका R बाय n. यह बात हमें पता है. तो R मैक्स अपॉन R मिनिमम जो है वह हो जाएगा n स्क्वायर. गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, how will you combine to get an equivalent resistance of 11 by 3? 11 by 3 रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायल मेथड यूज करा, कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चालू करा, कुछ ऐसा, उनके साथ में कुछ ऐसा, या ऐसा पैरेलल में ऐसा, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करा, या 3 सीरीज में 3 पैरेलल में आपने कनेक्ट किया, तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशंस बहुत होंगे. तो शॉर्ट तरीका क्या है कि इसकी मैथमेटिक्स देखिए. 11 बाय 3 को आप कैसा लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 5 बाय 3, या इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बाय 3. अगर 3 प्लस 2 बाय 3 लिखे हैं तो देखिए क्या होगा. 2 बाय 3 रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? अगर आपने 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया तो क्या होगा? 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो यह होगा 2 बाय 3. इसका मतलब एक रेजिस्टेंस 3 वाला सीरीज में ले लीजिए, 1 ओम के पैरेलल में 2 ओम कनेक्ट कर लीजिए, तो 3 प्लस दिस कॉम्बिनेशन, दैट इज 2 बाय 3, विल बी इक्वल टू 11 बाय 3, क्योंकि सीरीज में आप ऐड करेंगे तो यह हो गया आपका 11 बाय 3 का आंसर. कैसे कनेक्ट किया आप देख सकते हैं फिर से. 11 बाय 5, 11 बाय 5 को आप ब्रेक करें तो आपको मिलेगा 1 प्लस 6 बाय 5, या 2 प्लस, अगर आप 2 से डिवाइड करें 1 बाय 5. लेकिन 2 प्लस 1 बाय 5 आपका कहीं भी नहीं मिलेगा. अगर आपने 2 के सीरीज में 1 और 3 को पैरेलल भी कनेक्ट किया तो 1 बाय 5 नहीं मिलेगा. लेकिन 1 के सीरीज में, 1 के साथ सीरीज में आपने अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 यूज किया तो देखिए क्या होगा. 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 6 बाय 5. 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखिए, 2 into 3 that is 6 divided by 2 plus 3 that is 5. तो 1 plus 6 by 5 मतलब आपने इस तरह से कनेक्ट किया तो आपको मिल जाएगा आपका 11 by 5 रेजिस्टेंस. 6 ओम के लिए क्या करना होगा? ऑल सीरीज, 1 plus 2 plus 3 सीरीज, ऑल इन सीरीज. और 6 by 11, दिस इज द लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस एज आई सपोज. तो सभी को अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं तो क्या होगा. 6 के लिए आप इसे 6 by 6 कर लीजिए, 3 by 6 कर लीजिए, 2 by 6 कर लीजिए. दिस इज 11 by 6, दैट मीन्स R is 6 by 11. So this is the resistance due to all in parallel. All in parallel. Determine the equivalent resistance of network shown in figure. तो हम नए पेज पे फिगर बनाते हैं और फिर से हम देखते हैं.
तो एक बार फिर हम बोर्ड पर हमारा फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यह नेटवर्क देखते हैं और इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। दिस इज ऑल इन ओम्स, 1 ohm 1 ohm 1 ohm एंड दिस इज 2 2 2 2 2 ohms। 1 plus 1 in series, that is 2 ohm, and 2 plus 2 in series, that is 4 ohm. So this 1 unit is basically 2 ohm parallel to 4 ohm. 2 into 4 divided by 4 plus 2, that is 6, 8 divided by 6, that is 4 by 3. And there are 4 units in series of 4 by 3. So 4 by 3 into units in the series, it is 16 by 3 ohm. Very simple question. And this is R 5R, all it is in series. देखने में आपको पैरेलल लगेगा लेकिन बिल्कुल सीरीज है, कोई टेंशन नहीं है, सीरीज में है इस तरह से, तो बहुत ही आसान है। 3.21 determine the current drawn from 12 volt supply with the internal resistance of 0.5 ohm by the infinite network shown in figure. Each resistor has 1 ohm resistance. यहां आप देखिए 12 वोल्ट सप्लाई है विद 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे कनेक्ट करना है हमें, लेकिन उसके पहले इस इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस, आइए देखते हैं। अगर आप यहां से देखें तो रेजिस्टेंस आर है दो पॉइंट के बीच। कैसे कनेक्शन है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड फिर 1 ओम 1 ओम एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी। यदि आप इसे यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर यहां से देखें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर, क्योंकि इनफाइनाइट, तो यहां से भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट चैनल है, और यहां से भी आप देखें तो इनफाइनाइट लैडर्स है, और यहां से भी देखें तो इनफाइनाइट लैडर बना हुआ है। तो इस सबको इन दो पॉइंट के बीच में अगर हम क्रैक कर देते हैं और लिख देते हैं आर, तो यह हो जाएगा एक आर रेजिस्टेंस जिसे आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे 1 ओम से, और फिर यह 1 ओम, फिर यह 1 ओम, और इन दोनों पॉइंट के बीच आप देखें तो फिर से आर रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यहां से आर होना चाहिए पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस। तो आर को आप इस 1 ओम से पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए। अब हम देखते हैं आर, दैट इज दिस आर इज a combination of series 1 ohm and this combination in series. So 1 plus 1, that is 2, plus this combination in series, that is R into 1 upon 1 plus R. This is a parallel combination, R plus R into 1 upon 1 plus R in series with 1 ohm 1 ohm. तो तीनों को एड अप कर देंगे हम। यहां हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर। 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आर, और ये हो जाएगा आर। तो यह कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 2। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो माइनस बी कोफिशिएंट माइनस 2 का प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 a, that is 1, c, that is minus 2, so it is plus 2 now। 4 into 2 8 plus 4 12 divided by 2 into a is 1। 8 plus 4, that is 12। 12 को आप लिखेंगे 2 root 3 divided by 2, so r is 1 plus root 3 and also 1 minus root 3। दिस इज नेगेटिव जिसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और r की वैल्यू अगर आपके पास है तो करंट फाइंड करना कितनी देर का है काम है। EMF in the circuit is 12 volt divided by total resistance, that is 0.5 plus this resistance R, that is 1 plus root 3। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू मिलेगी 3.7 एम्पियर। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम इसे इस तरह से लेंगे और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये।
आइए आगे देखते हैं हम। एक्सरसाइज 3.22 figure shows a potentiometer with a cell of 2.0 volt and internal resistance 0.40 ohm. This is the potentiometer's driving cell maintaining a potential drop across the resistor wire AB. यहां एक potential drop maintain किया हुआ है. A standard cell which maintains a constant EMF 1.02 volt for very moderate currents up to a few milliampere. एक स्टैंडर्ड सेल जो जिसका EMF 1.02 है और कुछ हल्के करंट्स, लाइट करंट्स अप टू फ्यू मिली एम्पेयर तक उसका EMF ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. गिव्स अ बैलेंस 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. स्टैंडर्ड सेल से आप कुछ डिस्टेंस पर उसे बैलेंस कर लेते हैं. 67.3 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी वहां पर. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance 600 ohm is put in series with it. स्टैंडर्ड सेल की सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस इसलिए पुट कर देते हैं ताकि उसके अक्रॉस करंट बहुत कम रहे. नहीं तो क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. पोटेंशियल जो है सेल का ईएमएफ है, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वह ड्रॉप हो जाता है. हायर करंट्स पर ड्रॉप हो जाएगा ईएमएफ, विच इज शॉर्ट एंड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट. इसको हम बैलेंस पॉइंट पर क्लोज कर देते हैं क्योंकि बैलेंस पॉइंट पर वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं. बैलेंस पॉइंट पर करंट जीरो हो जाता है तो इस सेल के अक्रॉस फिर इस रेजिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस का जो वर्क है वह करंट को लिमिट करना है ताकि करंट ज्यादा ना हो. अगर यह पॉइंट आप इधर रखेंगे तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा. जैसे जैसे आप इधर आएंगे बैलेंस पॉइंट के पास में इसके अक्रॉस करंट अपने आप कम होगा ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप. अपोजिट डायरेक्शन में इस पर पोटेंशियल अप्लाई होगा और यह सेल लेस करंट फ्लो करेगा. इसलिए इसे सीरीज में रखने की जरूरत नहीं है, हम इसे शॉर्ट कर देते हैं. द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई एंड बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली. अब यहां नया सेल लगा देते हैं जिसका ईएमएफ ई है और सिमिलर तरह से उसका बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं. टर्न आउट टू बी 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? बेसिकली यह तो हमारा कंपैरेटिव फॉर्मूला हो जाता है E1 अपॉन ई L1 अपॉन L2. E1 अपॉन E2 इज L1 अपॉन L2 होगा. अगर आप E की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो L1 अपॉन L2. L2 जो था 82.3 है. L1 को मैंने E1 को मैंने E1 लिया है, E को मैंने E1 लिया है और E2 मैंने प्रीवियस वैल्यू ली थी दैट इज 1.02 और L2 पहली वाली वैल्यू ले ली है 67.3. सॉल्विंग दिस 82.3 डिवाइड बाय 67.3 into 1.02 we will get E is 1.24 समथिंग, तो हम उसे 1.25 लिख सकते हैं. What purpose does the high resistance of 600 k ohm have? पर्पस बिल्कुल क्लियर है, टू लिमिट करंट. To limit current when this pointer is far from balance point. Is the balance point affected by this high resistance? No, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पर करंट जीरो होता है. इस रेजिस्टेंस के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके अक्रॉस करंट जीरो होने से ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा और यहां जो ड्रॉप है वही इस ड्रॉप के इक्वल होगा क्योंकि पोटेंशियोमीटर में यहां से यहां तक जो ड्रॉप होता है वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी के ड्रॉप के इक्वल होता है. सर्किट में करंट जीरो होता है इसलिए सर्किट के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है. करंट अगर जीरो है तो V ऑब्वियसली जीरो होगा. V इज IR दैट वी नो. Is the balance point affected by the internal resistance of the driver cell? Yes. ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, ड्राइवर सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, इज द बैलेंस रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल. अगर ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया तो करंट ड्रॉप हो जाएगा. करंट ड्रॉप हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्रॉप हो जाएगी.
इसलिए इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? यस, इट इज अफेक्टेड बाय इट। इस बात का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में नो लिखा है जो कि गलत है। ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से इस सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा। करंट चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। वुड द मेथड वर्क in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? अगर आपने यहाँ 1 वोल्ट यूज किया और यह ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा है, 1.02 और 1.25 है, तो ड्राइवर सेल 1 वोल्ट है, यहां से यहां तक का ड्रॉप कभी भी 1 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 वोल्ट से कम ही होगा इवन, क्योंकि उसका, तो यहां जो ड्रॉप होगा वो ड्राइवर सेल के ईएमएफ से डेफिनेटली कम होगा। तो इस ड्रॉप, यह जो ड्रॉप है वह इस सेल को कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका ईएमएफ 1.02 है या 1.25 है, जो कि 1 वोल्ट से ज्यादा है, तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, दैट वी नो। इट विल नॉट बैलेंस द ईएमएफ ऑफ द बैटरीज। वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर determining an extremely small EMF, say of the order of few milliohm, such as typical EMF of thermocouple? थर्मोकपल अगर हम यहां यूज करते हैं जिसका EMF मिली वोल्ट्स में होता है, क्या उसको मेजरमेंट के लिए सर्किट यूजफुल है? इफ नॉट, हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट? ऑब्वियसली नो, नो इज द आंसर। दिस सर्किट इज नॉट appropriate for measuring the very low EMF, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट काफी ज्यादा है, इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। मिली वोल्ट के लिए आपका यह पॉइंटर ए के बिल्कुल पास में बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना होगी, पोटेंशियल जो है वो कम करना होगा, यहां करंट कम करना होगा। अगर आपने करंट कम कर दिया तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा। इसलिए सीरीज में, ड्राइवर सेल के सीरीज में आपको एक हाई रेजिस्टेंस यूज करना होगा। यूजिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ ड्राइवर सेल to reduce potential gradient will modify our circuit, will then be useful for measuring millivolt EMF. So it is very good question. पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। 3.23 figure shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with a standard resistance R is equal to 10 ohm is found to be 58.3 centimeter, while that with the unknown resistance X is 68.5 centimeter. This is R and this is X. R of 10 ohm and X से बैलेंस हो रहा है 68.5 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट जो भी होता है वो R के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट है और जो ड्रॉप है यहां से यहां तक, पहले हम R को कनेक्ट करेंगे, X को कनेक्ट नहीं करेंगे, और फिर X को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जब R को कनेक्ट करेंगे तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह इस ड्रॉप की इक्वल होगा, और वह ऑब्वियसली R के प्रोपोर्शनल होगा, और यहां लेंथ बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो R1 अपॉन X विल बी सिंपली L1 अपॉन L2। R is 10, L1 हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X, X फाइंड करना ही है। व्हाट माइट डू you do if fail to find a balance point with the given cell of EMF? अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है इस सेल से तो हम क्या करेंगे? पहले X फाइंड करते हैं। R by X is L1, L1 is 58.3 डिवाइड बाय 68.5। X की वैल्यू क्या होगी? X की वैल्यू होगी 68.5 अपॉन 58.3 इंटू 10, और यह वैल्यू होगी 11.749 समथिंग, जिसे आप 11.75 या नियरली 11.8 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद।
ओम। और अगर सेकंड आंसर हमारा जो यह होगा, अगर ईएमएफ बैटरी का इससे बैलेंस नहीं कर पाता है तो क्या होगा, यह बैलेंस नहीं हो पाता तो क्या होगा, इसका मतलब यहां पर जो ड्रॉप है वह इस ड्रॉप से ज्यादा है, यहां जो ड्रॉप है इस ड्रॉप से ज्यादा है तो इसे बैलेंस नहीं कर पाएगा। यह ड्रॉप अगर कम है और यह ड्रॉप ज्यादा है तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें यहां ड्रॉप कम करना होगा, इसका मतलब यहां करंट कम करना होगा। I should be decreased. In order to reduce drop of potential across resistors. That is simple. That is current should be reduced. और इसलिए हमें यहां पर एक सीरीज रेजिस्टेंस यूज करना होगा। सीरीज resistance should be added to EMF of the battery. So this is the answer. 3.24 figure shows a 2-volt potentiometer used for determination of internal resistance of 5-volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. ओपन सर्किट का मतलब यह हुआ कि यहां पर हमने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है। यदि हम यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम, यहां 9.5 ओम का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. पहले आप देख रहे हैं यह बैलेंस पॉइंट जो है 76.3 सेंटीमीटर पर था यहां तक, फिर उसके बाद में यह बैलेंस पॉइंट 64.8 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा जब आपने यह रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला है R, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इस L2 अपॉन L2 लिखा जाता है। L1 इज मोर देन L2 minus 1. और what is L1? L1 is the previous value of balance point, that is 76.3 divided by L2. L2 is value of balance point after the resistance is connected in parallel to the battery, minus 1 into R, the resistance is 9.5. Solving this you will get the value 1.7 ohm. So this is the answer. This is the answer. This is a very good question. Just a formula based question, but this is a very good experiment. तो आइए देखते हैं आगे।